Good morning, friends. Now, next lecture. Friends, today is our last lecture of these chapters. Almost we completed so many questions in these chapters. Right now, we are going to start some extra questions. Out of them, maximum are not given in a textbook. So these all are different types of questions with different figures, different concept. It's extra questions. So let's start today's question. First question, it's very simple. ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए फ्रेंड्स, सपोज it's a trapezium. It's a, B, C and D. Again I repeat, it's a trapezium. Trapezium means what? In which, as we know that in a quadrilateral there are pair of two opposite sides. Pair of two opposite sides. Out of these two pair, any one pair is a parallel. Second pair is not a parallel. Here AB parallel to CD and AD is not parallel to BC. So it's trapezium, we know that. And the length of AB is 18, length of BC is 32 and distance between two parallel line. Here parallel line means what? It's a AB and DC. Distance between two parallel line is 14. That is given, friends. Okay. And the last thing, from all the points A, B, C, D, there is a arc drawn with 7 centimeter. At every points, every A, B, C, D, every points A, B, C, D, we draw arc with the length of 7 centimeter. So it becomes like that. It's a first arc with the length of 7 centimeter. It's a second arc with the length of 7 centimeter. It's a third arc 7 centimeter and it's a fourth arc. It's also 7 centimeter. One thing is clear, all four arcs made by radius of 7 centimeter. Again I repeat, at all the four vertices of the quadrilateral ABCD, we draw four arc with the radius of 7 centimeter. So now question is what? Find the area of this part. We have to find area of this shaded part. ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसमें आपको सोचना है थोड़ा सा. हर बार मैं बता चुका हूँ, कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे भी कर चुके हैं जिसमें 9th के भी कोई ना कोई कंसेप्ट का यूज हुआ हो. इसमें भी ऐसा ही कुछ है. ओके, सबसे पहले तो आप सोचिए, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? इट्स वेरी सिंपल. आई थिंक सबको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो पता चल ही गया होगा. आप उसकी जो फॉर्मूला है वो तो बना ही सकते हो. हमारा जो रूल्स है अब तक का, पेज और सीजर, वही करना है. आपके पास पेज है जो इस शेप में है और सीजर है. सो हाउ विल यू गेट द शेडेड पार्ट? इट्स वेरी सिंपल. यू विल कट डाउन द ऑल फोर वाइट पार्ट्स from the page. So now shape of page is what? It's a trapezium. And shape of white part is what? थोड़ा सा अगर आप गौर करके देखोगे तो पता चल जाएगा
it's a minor sector. Look at this. That is minor sector. That is also minor sector. So it means there are 4 minor sectors. अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है. काफ़ी बच्चे ऐसा सोचेंगे there are 4 minor sector. It means 4 into minor sector. Okay. Area of trapezium minus 4 into minor sector. काफ़ी बच्चों ने ये फॉर्मूला बना ही लिए, लेकिन वो गलत है. अब दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, वाई इट्स रॉन्ग. ऐसे ही फॉर्मूला आप क्यों नहीं ले सकते? आपको दिखाई दे रहा है इट्स अ ट्रेपेजियम एंड इट्स 4 माइनर सेक्टर. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ माइनर 4 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. लेकिन इट्स अ रॉन्ग. वाई? माइनर सेक्टर में ये सही है कि दे ऑल हैव सेम रेडियस, बट थीटा इज द चेंज. थीटा सभी में सेम नहीं है फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि सभी जो ये वर्टाइसिस है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, दे ऑल आर इक्वल. यस, इफ इट इज स्क्वायर, आइदर इफ इट इज रेक्टेंगल, देन इट्स ट्रू, all are 90 degree. But here we can't say that they all are equal. So we can't use 4 into area of minor sector. समझ में आ रहा है? So now what? Okay, करना तो वही है हमें. तो अब वो क्या करेंगे हम? ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स. area of shaded part equals to area of trapezium ABCD minus area of there are 4 minor sectors. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसको माइनस एरिया ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेते हैं 4 टाइम्स. इसका हम ऐसे स्टेटमेंट में नहीं डिनोट कर सकते. सो इट्स अ फर्स्ट पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बाई 360. इट्स अ एरिया ऑफ व्हाट? ये किसका एरिया है? इट्स दिस प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 बाई 360 एंड प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 4 बाई 360. समझ में आ रहा है ऐसा मैंने क्यों लिखा है? Again, it's a theta 1, it's a theta 2, it's a theta 3 और it's a theta 4. यहाँ भी theta 3 लिख सकते हो. Again I repeat, area of trapezium ABCD minus it's a first minor sector, second minor sector, third minor sector और 4 minor sector. Okay, now what is the formula of area of trapezium? अब वो पता होनी चाहिए आपको. 1/2 into addition of both parallel side. Addition of both parallel sides. So which are the parallel sides? It's a AB and CD. And into altitude on a parallel sides. Either distance between both the parallel sides. Suppose here is m, so distance between both the parallel side is am minus. अब क्या करेगी यहाँ फ्रेंड्स? इन ऑल 4 पाई इज कॉमन, आर स्क्वायर इज सेम एंड 360 इज सेम. सो विल टेक कॉमन. व्हाट इज द कॉमन? इट्स अ पाई आर स्क्वायर बाय 360. इन द ब्रैकेट वी विल गेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4. समझ में आ रहा है?
क्या किया हमने, कॉमन ले लिए, पाई आर स्क्वायर बाय 360 वो हमने कॉमन ले लिया है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू 1/2 into AB is what, it's given, it's a 18, CD is what, it's also given, that is 32 into AM is what, it's a 14. Now minus अगेन पाई कॉमन ले लेंगे, सो इट्स पाई के वैल्यू क्या पुट डाउन कर देंगे 22/7 एंड द रेडियस ऑफ ऑल 4 माइनर सेक्टर इज 7, सो इट्स अ 7 स्क्वायर बाय 360। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है θ1 + θ2 + θ3 + θ4। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे पास उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रूल्स है। इन अ क्वाड्रिलेटरल, इट कैन बी एनी क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, so it's a 360 degree. So already we can put down here 360 degree. So now very simple, it's a 1/2 into ये क्या हो जाएगा 18 + 32 that is 50 into 14 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 360 कैंसल, 7 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसल, सो इट बिकम्स 154। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 7 जा 50 into 7 that is 350 माइनस क्या हो जाएगा इट्स 154। सो नाउ 350 माइनस 154 कर देंगे, हियर इज 10 माइनस 4 इट्स 6, 4 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, 14 माइनस 5 इट्स 9 एंड 2 माइनस 1 इट्स 1, सो इट्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में आपको 2 जगह ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला क्या है, 1/2 into एडिशन ऑफ बोथ द पैरेलल साइड अगेन into डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल साइड। एंड सेकंड थिंग, गलती से भी यहाँ ऐसा नहीं लिखना है -4 into एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है उस पर दिक्कत क्या है, 4 into एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखोगे आप तो 4 into पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सो इट्स अ रॉन्ग थिंग्स, ऐसा आपको नहीं करना है। एक और क्वेश्चन अभी हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी यहाँ हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सभी काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन में, इसी में आपको थोड़ा सा सोचना है। इट्स नॉट गिवन इन ए टेक्स्ट बुक, ओके, ऐसे भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऐसी फिगर दी गई है, मान लीजिए हमें इट्स अ सेमी सर्कल, इट्स अ ए, हियर इज C or here is B. It's a AB of 3 centimeter, BC it's a 4 centimeter. Okay, it's a 3 centimeter, it's a 4 centimeter. Okay, और ऐसे फिगर दी गई है, again it's a semicircle where AB is a diameter. It's a semicircle where AB is a diameter and it's a again semicircle in which BC is a diameter. You can understand, if the BC is a diameter and length of BC is 4, so its radius is 2 centimeter. And if the AB is a diameter, then its radius is a 1.5 centimeter. Okay, now the question is find the area of shaded part. आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 या 2 मिनट, आप भी सोच लीजिए
पहले आप ट्राई कीजिए अपने आप, हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना शेडेड पार्ट चाहिए जिसमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ही चाहिए जिसमें कोई ना कोई शेड दिया है। ओके, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इट्स अ सेमी सर्कल in which diameter is AC. Again it's also semicircle in which AB is a diameter, and it's also semicircle in which BC is a diameter. Length of AB is 3 cm, length of BC is a 4 cm. Now the question is how can we get the area of shaded part। पहले आप सोच लीजिए, I give you a time 1 or 2 minutes, take your time, सोच लीजिए। किसी ना किसी तरीके से आपको वो सिर्फ शेडेड पार्ट ही चाहिए। किसी ना किसी चीज़ का आप एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपको जो कुछ भी करना है वो कीजिए, लेकिन आपको वो शेडेड पार्ट मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने ये आज का लेक्चर लिया है जिसमें हम काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी बच्चों को पहले तो यही नहीं याद होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एक यहाँ भी वो मिस्टेक कर देंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन, आप ही सोच लीजिए पहले, 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, थोड़ा सा सोचना है। इसकी रेडियस क्या है, इट्स अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर। यहाँ जो मैं 3 लिख रहा हूँ इट्स अ लेंथ ऑफ AB। यहाँ मैं जो 4 लिख रहा हूँ इट्स अ लेंथ ऑफ BC। और एक चीज़ हमें मालूम ही है, एज वी नो इन अ सेमी सर्कल AC B इज अ 90 डिग्री, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। और बाय द PGT you can easily get the value of AC, it will be 5। ओके, आप उसकी कैलकुलेशन आपको बतानी होगी एग्जाम में। इनर ट्राइंगल ABC B is a 90 डिग्री, सो आपको बाय द PGT you will get the AC, it's a 5। ओके, अब आपने सोच लिया होगा। अब मैं बता रहा हूँ, आप में से देखना है कितनों को सही आंसर मिला है। अब इसमें क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट थिंग, सबसे मैं क्या लूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ द डायामीटर AB। समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ये क्या लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AB। जिसकी डायमीटर AB है वो पूरा सेमी सर्कल ले लिया। अब सोचिए उसमें कौन सा पार्ट आ गया, इसमें ये वाला पार्ट आ गया। ये देखिए, ये पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AB, इसमें ये शेडेड पार्ट भी आ गया और ये वाइट पार्ट भी आ गया। समझ में आ रहा है? एक्चुअली हमें सिर्फ शेडेड पार्ट चाहिए, लेकिन इसमें अभी मैंने वाइट पार्ट ले लिया है। ये वाला पार्ट जो हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए वो भी इसमें आ गया है। गॉट इट? ओके, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायामीटर BC। ओके, अब इसमें मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, तो ये पार्ट आ गया, इसमें ये पूरा पार्ट आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इट्स लाइक दैट। अब इसमें भी कौन सा पार्ट आ गया, इसमें ये शेडेड पार्ट भी आ गया और ये वाइट वाला पार्ट भी आ गया जो हमें नहीं चाहिए एक्चुअल में। अगर आपने ऐसा किया है तभी सही है। अगेन आई रिपीट,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर ए बी, ये वाला लिया, इसमें ये पार्ट भी आ गया और ये पार्ट भी आ गया। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर बी सी, तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। समझ में आ रहा है? ओके, अभी और क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें मैंने ये ले लिया, उसके साथ ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है। काफ़ी बच्चे सोच रहे हो कि सर ये गलत है, आपने यहाँ ऐड किया है, एक्चुअली वहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ प्लस ही आना चाहिए। अब सोचिए, ये वाला पार्ट भी मैंने ले लिया, इसका मतलब ये भी ले लिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ आ गया, ये नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ आ गया, ये नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों पार्ट मैंने ले लिए, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब ये तीनों पार्ट को मिला के हम एक साथ सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, आप फिगर में देखिए। सो माइनस इट्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायामीटर AC। जो AC है वो जो सेमी सर्कल बना रहा है ये वाला, अब देखिए वो ये है जिसकी डायमीटर AC है, वो जो सेमी सर्कल बना रहा है वो ये है। अब आपको समझ में आ रहा है? अब जब मैं इन तीनों में से, पहले मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, अब इन तीनों में से जब मैं ये सबट्रैक्ट कर दूंगा तो वो इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट हो ही जाएगा। तो अब क्या बचेगा? सिर्फ ये शेडेड पार्ट। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, जिसकी डायमीटर AB है, ऐसा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया पूरा ले लिया, उसमें ये भी आ गया और ये वाइट पार्ट भी आ गया। हालांकि हमें ये नहीं चाहिए, वाइट पार्ट हमें नहीं चाहिए, फिर भी मैंने ले लिया। ऐसे ही ये भी ले लिया, उसमें भी ये वाइट पार्ट नहीं चाहिए, फिर भी ले लिया। और ये तो नहीं ही चाहिए, फिर भी मैंने ऐड कर दिया इन तीनों में। तो ये वाला पार्ट जो नहीं चाहिए वो आ गया, ये भी नहीं चाहिए वो भी आ गया, ये भी नहीं चाहिए वो भी आ गया, तीनों आ गए। अब इन तीनों को कैसे हम माइनस करेंगे? एक्चुअली ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इट्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AC। अब आपको सब कुछ मालूम है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पुट डाउन करनी है। एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर AB, तो इट्स अ सेमी सर्कल, सो इट्स 1/2 पाई r1 स्क्वायर। वाई r1 उसकी रेडियस डिफरेंट होगी, प्लस सेमी सर्कल है तो इट्स 1/2 पाई r2 स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, it's a right triangle, so into 1/2 into AB into BC, and minus area of semicircle with the diameter AC, so it's a 1/2 pi r3 square। अब अगर हम इन तीनों में से, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला जो है, इन तीनों में से अगर हम 1/2 पाई कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इट्स r1 स्क्वायर प्लस इट्स r2 स्क्वायर माइनस इट्स r3 स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू AB क्या है? इट्स 3 और BC क्या है? इट्स 4। नाउ 1/2 इंटू पाई को ऐसे ही लिख लेते हैं। R1 इज व्हाट? रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स 1.5 होल स्क्वायर। R2 इज व्हाट? इट्स 2 होल स्क्वायर। और R3 क्या हो जाएगा? इट्स 2.5 होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 4 और 6। अगेन 1/2 पाई ऐसे ही लिख लेते हैं। 1.5 होल स्क्वायर इट्स 2.25, 2 होल स्क्वायर इज 4, 2.5 होल स्क्वायर इज 6.25 प्लस 6, अगेन इट्स 1/2 इंटू पाई इंटू इट्स 6.25 माइनस 6.25 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स 0। 0 multiply with any number, it's a 0. So answer is what? It's a 6 centimeter square. So area of shaded part, it's a 6 centimeter square. So both questions are very important question friends. आप देख रहे हो काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे अभी भी,
काफ़ी कुछ नया नया देखने को मिल रहा है यहाँ। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन में ही ऐसा लगा कि काफ़ी इसमें जितना भी ट्विस्ट किया जाए वो हो सकता है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। हालांकि सभी बच्चों के लिए नहीं है, पहले आपको टेक्स्ट बुक करनी है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको पहले तो टेक्स्ट बुक करनी है फ्रेंड्स। हाँ, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आया, मीन्स आप अपने आप नहीं सोच रहे हो, नहीं सोच पा सकते हो, तो जब मैं आपको बता दूँ, जब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, उसके बाद तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया है फ्रेंड्स, it's a circle in which P, Q, R, S, where PS is a diameter with the radius of 6 centimeter. It's a radius of 6 centimeter फ्रेंड्स। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमें यहाँ ऐसे दिया है, इट्स अ Q, it's a R. So ऐसा फिगर दी गई है हमें, यहाँ शेडेड पार्ट किया हुआ है, ओके और ऐसा दिया गया कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी एस, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू आर एस। ये तीनों सेम है ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है यहाँ। ओके, एंड द रेडियस इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर। PQ is a semicircle. It's a semicircle with the diameter PQ. It's also a semicircle with the diameter QS. Okay. शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो। PS is the diameter of circle where radius is 6 centimeter. Okay, PQ plus QR, PQ is equals to QR is equals to RS. Okay, it's a यहाँ रेडियस क्या है? इट्स अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इन सभी के रेडियस 2 सेंटीमीटर है। सो इट्स अ 2 + 2 4। ये भी क्या हो जाएगा? इट्स अ 4 और ये भी क्या हो जाएगा? 4। सो इट्स अ 8 हो जाएगा। ओके, QS शायद ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है, फिर भी देख लेते, ट्राई कर लेते क्वेश्चन में आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। हो सकता है थोड़ी सी कोई दिक्कत हो यहाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये फिगर देखनी है, फिगर, और ये सोचो कि हमें ये शेडेड पार्ट चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। फिगर में आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम ये ले लेंगे, ये वाला सेमी सर्कल। अब जब हमने ये सेमी सर्कल लिया तो उसमें ये शेडेड पार्ट भी आ गया और ये नॉन शेडेड पार्ट भी आ गया, जो हमें नहीं चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड पार्ट
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट्स अ एरिया ऑफ सेमी सर्कल with the diameter PS। जो PS है, PS जिसका डायमीटर है, वो जो सेमी सर्कल है उसका हमने एरिया ले लिया, उसमें ये शेडेड पार्ट भी आ गया और ये नॉन शेडेड पार्ट भी आ गया, और उसमें क्या प्लस कर देंगे, इट्स अ एरिया ऑफ सेमी सर्कल with the diameter PQ, with the diameter PQ। जो PQ जिसकी डायमीटर है उसको भी हमने ऐड कर दिया क्योंकि उसमें भी शेडेड पार्ट है, तो एक्चुअल में ये वाला पार्ट हमें मिल गया। जब मैंने ये दोनों ऐड किए, ये दोनों जब मैंने ऐड किए तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट भी मिल गया और ये वाला पार्ट भी मिल गया। तो प्रॉब्लम कहाँ है, जो हमने ये दोनों जब ऐड किए तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया जो हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए। तो अब क्या कर देंगे, हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सो इट्स अ माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर QS। समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर PS, सो 1 + 2, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर PQ एंड माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर QS। अब अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? इट्स थोड़ा सा यहाँ कोई ना कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में रेडियस दी गई है या फिर देखना पड़ेगा, लेकिन करना आपको ऐसे ही है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। जब होमवर्क दूंगा मैं तो उसमें ये क्वेश्चन में यहाँ करेक्ट करके दूंगा आपको। फिगर देखनी है सिर्फ और फिगर, यहाँ इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? जब आपको रेडियस पता चल जाएगी तो ये तो फाइंड करना आपको आता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 1/2 पाई r1² प्लस 1/2 पाई r2² माइनस 1/2 पाई r3²। वाई? दे ऑल हैव डिफरेंट रेडियस, तीनों की रेडियस डिफरेंट होगी। फिर तीनों में से 1/2 पाई क्या कर लेंगे हम, कॉमन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स r1² प्लस r2² माइनस r3²। यहाँ r1 क्या है, जिसकी डायामीटर क्या है, PS। अब डायामीटर PS है, उसकी रेडियस क्या है, 6। यहाँ उसकी रेडियस क्या है, इट्स 6, तो यहाँ क्या हो जाए 6² r2 क्या है, PQ, तो इट्स 2, सो इट्स 2² हो जाएगा, सो इट्स 4। समझ में आ रहा है? और r3 क्या है, इट्स QS। तो सिर्फ वही करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है लेकिन आपको सिर्फ यही समझना है मेन। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन है, गौर से देखिए उसको। मान लीजिए कि हमें कोई ऐसी फिगर दी गई है, इट्स अ ट्राइंगल ABC with the B is a 90 degree, BC is a 21 centimeter, AB is a 28 centimeter, और ऐसे हमें यहाँ दिया है। अब जब मैंने ये ड्रॉ किया, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स। इसके साथ हमें ऐसा दिया है यहाँ। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जी हाँ, यहाँ भी शेडेड पार्ट किया है, यहाँ भी वी वांट शेडेड पार्ट, हमें ये चाहिए। समझ में आ रहा है?
ये वाला पार्ट भी जो एक्चुअल में ट्राइंगल में है वो भी यहाँ इंक्लूड है, ये भी हमें चाहिए फ्रेंड्स। तब वो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और ये क्या है, इट्स अ सेमी सर्कल इन विच डायमीटर इज AC, ये सेमी सर्कल है फ्रेंड्स। ओके, अब क्या करेंगे आप भी सोच लीजिए, आपको पहले मैं 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सोचिए हाउ विल यू गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो पॉज करके पहले आप सोचिए 1 मिनट 2 मिनट, यहाँ तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि 2 मिनट में आपको दूंगा तो 2 मिनट में क्या करूँगा। आप वीडियो पॉज करके पहले अपने आप सोचिए, फिर वीडियो स्टार्ट करके देखिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। अगेन आई रिपीट, हमें ये शेडेड वाला पार्ट चाहिए, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग अगेन आई रिपीट, इट्स अ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AC। ओके, तो पहले हम लिखेंगे हाउ कैन वी गेट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ओके, फर्स्ट वी विल टेक एरिया ऑफ सेमी सर्कल with the diameter AC। ओके, सबसे पहले क्या लिया हमने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले लिया, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, हमें ये जो शेडेड पार्ट चाहिए वो तो हमें चाहिए ही, उसके साथ ये वाला पार्ट जिसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, जो हमें नहीं चाहिए, ये वाला वाइट वाला पार्ट। अब समझ में आ रहा है। अगेन आई रिपीट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए, सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल, जिसमें डायमीटर AC है, तो उसमें ये शेडेड पार्ट भी आ गया और ये जो नहीं चाहिए नॉन शेडेड पार्ट वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। अब क्या लेंगे उसके साथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसमें मैंने ये ऐड कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब दिक्कत क्या है, उसमें ये जो नॉन शेडेड पार्ट, ये शेडेड वाला पार्ट है वो तो ट्राइंगल में आ ही जाएगा, वो सेमी सर्कल में नहीं आएगा, देखिए ट्राइंगल में आएगा। लेकिन उसके साथ ये जो सेकंड वाला पार्ट है, वाइट पार्ट, ट्राइंगल वाला, सिर्फ देखिए ये ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल वाला जो ये सेकंड पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो जब मैंने ये दोनों ऐड किए तो उसमें क्या क्या आ गया, ये शेडेड पार्ट आ गया, ये शेडेड पार्ट आ गया, लेकिन उसके साथ ये दोनों वाइट पार्ट भी आ गए जो हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो ये वाइट पार्ट कट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाइट पार्ट आप देखिए, वाइट पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो ये है। तो इसको तो हम जानते हैं, इसको मैथ्स में क्या कहते हैं, इट्स अ माइनर सेक्टर। सो इट्स अ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इट्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है। सपोज मैं यहाँ D लिख लेता हूँ तो माइनर सेक्टर BCD हो गया वो। सो नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AC। तो सबसे पहले तो AC फाइंड करना होगा। तो अगर आप AC फाइंड करोगे तो बाय द PGT you will get AC 35 centimeter. So AC is a 35 centimeter. So radius is 35 by 2. It's a diameter. तो radius क्या हो जाएगी 35 by 2. Now the semi circle की फॉर्मूला क्या है 1 by 2 pi r square प्लस ट्राइंगल कौन सा है it's a right triangle. So 1 by 2 into AB into BC माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसकी फॉर्मूला क्या है इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. सो नाउ 1 by 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है इट्स 22/7 और रेडियस क्या होगी सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी इट्स 35/2. ये कौन सा वाला रेडियस है इट्स नॉट दिस, इट्स अ रेडियस ऑफ
सेमी सर्कल, इट्स अ 35/2 प्लस 1/2 into AB is what 28, BC is what 21, again pi is what 22/7 और रेडियस, ये किसकी रेडियस है? सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? इट्स अ 21 into 21 और थीटा क्या हो जाएगा? इट्स अ 90 into 360. So it's a now very simple. 7 5s are 35, 2 11s are 12, 11 into 5, सॉरी यहाँ r स्क्वायर है तो हमें 2 टाइम करना होगा. इट्स अ 35/2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35 होल्स 11 into 5 55, 55 into 35, 55 into 35, so it's a 0. यहाँ क्या हो जाएगा? 25, so here is 2. It's a 1750. It's a 1925. It's what? 1925. और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4. 1925 डिवाइड बाय 4. अगेन आई रिपीट, 11 5s are 55, 55 into 35. So it's a 7 plus 5 12, 9. Okay. यहाँ क्या हो जाएगा? It's a 14, 14 1s are 14. So here is 1. 14 2s are 28 plus 1 29 minus यहाँ क्या हो जाएगा? 7 3s are 94s are 2 11s are 2 2s are 11 into 3, that is 33. So 21 into 33, so it's a 0 3 6 or 6 3, so it's a 396. So minus 693/2. Now for the addition or subtraction, LCM will be 4. So here is 1925 plus 4 4s are 16. Here is 1. 4 9s are 36 plus 1 37. Here is 3. 4 2s are 8. 8 plus 3 11. माइनस यहाँ 2 है तो हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 3s are 6, 2 9s are 8, 2 9s are 18. Here is 1. 2 6s are 12 plus 1, that is 13. अब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ 5 plus 6 11. Here is 1. 7 plus 9 plus 1, that is 10. 0. Here is 1. 9 plus 1, 10 plus 1, 11. Here is 1. 1 plus 1 plus 1, that is 3. Minus 1386 divide by 4. अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 30. 11 minus 6, that is 5. 9 minus 8, that is 1. 30 minus 13, it's a 17. Divide by 4. 4 4s are 16. Remainder is 1. So it's a 4 2s are 8. 11 minus 8, that is 3. 4 7s are 28. 4 8s भी हो सकता है यहाँ. 4 8s 32. 35 minus 32, so remainder is 3. So 4 7s are 28 or 2, 4 5s are. So answer is 428.75 centimeter square. Nothing to worry, just simple addition और subtraction ही है और कुछ नहीं है. ये वाला पार्ट इन लोगों ने लिया है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. क्या किया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AC, फिर राइट ट्राइंगल और उसमें से ये माइनस सेक्टर हमने सबट्रैक्ट कर दिया है. ओके फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन हमने और देखे. यहाँ जो पहला वाला क्वेश्चन था इसके पहले उसमें सिर्फ इतना दिया था PQ QR एंड RS दे ऑल आर इक्वल. ऐसा नहीं था कि उन सभी की वैल्यू 2 थी. जो बड़ा वाला सर्कल था उसकी रेडियस क्या थी? 6. रेडियस 6 थी, उसका मतलब है कि उसकी जो डायामीटर होगी वो क्या हो जाएगी? 12.
अब पी क्यू क्यू आर एंड आर एस दे आर इक्वल, तो 12 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, 4 4 और 4 हो जाएंगे। फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको? अब वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं था उसमें। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे हमें कोई दिया जा सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया है कि इट्स अ स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर है विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर, 14 ओके, और हमें ऐसा दिया है यहाँ, एक्चुअली ऐसे बनाया है फिगर इन लोगों ने। यहाँ एक और स्क्वायर दिया है, व्हाट इट, एक्चुअल में ये नहीं दिया है, ये हमें बनाना है जो स्क्वायर है, सिर्फ ये सेमी सर्कल ही दिए है ओके। और यहाँ हमें दिया है इट्स अ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हमें दिया है इट्स अ 3 सेंटीमीटर, गॉट इट, इतना हमें दिया है फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर ओके। और यहाँ शेडेड पार्ट दिया है, एक्चुअल में यहाँ शेडेड पार्ट दिया हुआ है। इतना हमें शेडेड पार्ट दिया हुआ है। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब क्या करना है सोचिए, इट्स वेरी सिंपल। इट्स अ बिगर स्क्वायर, इट्स अ स्मॉलर स्क्वायर और देयर आर 4 सेमी सर्कल। तो हमें ये शेडेड पार्ट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? इट्स वेरी सिंपल, ये पूरे स्क्वायर में से हम ये पूरी फिगर निकाल देंगे। अब जो पूरी फिगर है वो क्या है? इट्स अ 1 स्मॉलर स्क्वायर एंड 4 सेमी सर्कल विद द सेम रेडियस। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इट्स लाइक दैट, एरिया ऑफ it like that area of shaded part equals to, कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर मीन्स in which side is 14 centimeter minus area of smaller square is this, it's a smaller square, and minus 4 into area of semicircle ओके। अब एरिया बिगर स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? इट्स L1 स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इट्स L2 स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इट्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। नाउ L1 इज व्हाट? इट्स 14, सो इट्स 14 होल स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, L2 लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या होगी, और रेडियस ऑफ स्क्वायर सेमी सर्कल क्या होगी। अब ये भी सोच लीजिए कि ये जो लेंथ ऑफ ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है, स्मॉलर स्क्वायर, वही इस सेमी सर्कल के लिए क्या है? इट्स अ डायामीटर। जो स्मॉलर स्क्वायर की साइड है
वही सेमी सर्कल की डायमीटर है, तब वो कैसे फाइंड करेंगे? अब उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए, मान लीजिए कि इट्स अ मिड पॉइंट, इट्स अ सेमी सर्कल है, इट्स अ डायमीटर, सो इट्स अ मिड पॉइंट। ओके, सो थोड़ा सा सोचिएगी फ्रेंड्स। इट्स व्हाट? इट बिकम्स रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो इट्स ऑल्सो व्हाट? इट्स अ रेडियस। और यहाँ अगर सेंटर पॉइंट है तो ये 2 टाइम रेडियस हो जाएगी। इट्स ऑल्सो रेडियस, समझ में आ रहा है? यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगेन आई रिपीट, इट्स अ डायामीटर, सो इट्स अ रेडियस। सपोज लेट्स द रेडियस इज r, स्क्वायर है फ्रेंड्स। अगर ऐसा भी सोच सकते हो आप, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज r, इट्स एक्चुअली 2r, सो इट्स r प्लस r, इट्स 2r, तो सभी रेडियस r हो जाएगी। अब क्या करना है? अब ये 14 है तो ये भी कितना होगा? इट्स 14, सो इट बिकम्स 3 प्लस r इज हाउ मेनी टाइम? इट्स 4 टाइम्स, सो इट्स 2r, सॉरी 4 टाइम्स, सो इट्स 4r प्लस 3 प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14। इन सभी का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स 14, सो इट्स 3 प्लस 3, इट्स 6, सो 4r प्लस 6 इक्वल्स टू 14, सो 4r इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। सिर्फ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। r इज 2 कैसे मिला आप सबको पता है। अब r 2 है तो ये 2 है तो ये 2 है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इट्स 4, तो यहाँ L2 क्या लिख देंगे? 4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 2 जा 4, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? इट्स 22/7, और उसकी रेडियस क्या है सेमी सर्कल की? इट्स 2, सो इट्स 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 14 होल स्क्वायर 196, 4 होल स्क्वायर 16, और यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 22 कर देंगे। अगर पाई की वैल्यू दी गई है तो वो हमें लिखनी होगी 3.14, पाई की वैल्यू यहाँ दी गई है, सो 3.14 डिवाइड बाय 100, सो 2 raised to 2 that is 4, 4 into 2 that is 8, 314 into 8 कर देंगे, सो 8 4 जा 32, here is 3, 8 1 जा 8 plus 3 that is 11, here is 1, 8 3 जा 24 plus 1 25, और डिवाइड बाय 100 है, सो 24.12। ना 196 माइनस 16 वो क्या हो जाएगा? इट्स 180, माइनस क्या करना है? इट्स 25.12। सबसे पहले 180 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 155, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इज योर आंसर। अगेन आई रिपीट, पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? रेडियस। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये 3 है, ये 3 है, इट्स अ रेडियस r, इट्स ऑल्सो रेडियस r, होल लेंथ इज 2r, सो इट्स r, सो इट्स r प्लस 3, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे देख सकते हो। अगेन इट्स वेरी सिंपल and it's important question friends, very as per exam point of view. It's a semicircle with the diameter 36 centimeter. Suppose it's a AB, it's a M, और यहाँ हमें दिया है 1 सेमीसर्कल AM, 2nd सेमीसर्कल MB, और एक सर्कल जो है वो इन दोनों को टच कर रहा है, ऐसे दिया है विद द सेंटर पॉइंट C। गॉट इट? यहाँ हमें ऐसे फिगर दी गई है। AB क्या है? इट्स 36, और M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, नाउ हमें ये चाहिए, इट्स अ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट।
Okay, now it's very simple. We know that it's a semicircle. तो AM क्या हो जाएगा? It's a 18. MB भी क्या हो जाएगा? 18. तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? It's a 9. इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी? It's a 9 सेंटीमीटर. अब जो पूरा क्वेश्चन है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिफिकल्ट क्या है, ये जो सर्कल है वो सेंटर पॉइंट इज सी, उसकी रेडियस नहीं दी गई है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर वो मिल जाए तब तो काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले तो ये शेडेड पार्ट कैसे मिलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं. सबसे पहले क्या डिराइव करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल with the diameter AB, जिसकी डायमीटर AB है वो पूरा सेमी सर्कल मैंने ले लिया, ये पूरी फिगर ले ली मैंने. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसका मतलब क्या है, इट्स अ एरिया ऑफ सेमी सर्कल with the diameter AM minus area of semicircle with the diameter MB. ये दोनों हालांकि सेम है. आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर AM. जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा, एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स. ओके, विद द सेंटर पॉइंट C, विद द सेंटर पॉइंट C. ओके, अब इसमें दिक्कत क्या है, ये जो सेमी सर्कल है AM वाला, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 9. ये जो रेडियस सर्कल है उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, 9. लेकिन ये जो है उसकी रेडियस हमें नहीं दी गई है फ्रेंड्स, तो वो हमें फाइंड करनी है. तब वो कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम थोड़ा सा सोचेंगे. इट्स अ सेंटर पॉइंट, इट्स अ सेंटर पॉइंट ऑल्सो. ओके, सबसे पहले तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये पूरा ऐसे. ओके, यहाँ अगर हम D लिख लेते हैं तो यहाँ MB जो है वो क्या है, रेडियस. सो ये MD है वो भी क्या हो जाएगा, इट्स अ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. तो ये अगर 18 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, इट्स अ 18. इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अब यहाँ मान लीजिए कि हम इसको O कहते हैं. अगर हम O और C को ज्वाइन कर देते हैं A से, और वो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए OM क्या है, रेडियस, तो ये क्या भी, ये भी क्या होगी, रेडियस. सो इट्स अ 9, तो इट्स अ 9. और ये क्या है, इट्स अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल. लेट द सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R, then OC is what, OC becomes 9 plus R. सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये है, CMO, इट्स अ राइट ट्राइंगल. अब हमारे पास OM है, OM की वैल्यू क्या है, इट्स अ 9. OC है, OC की वैल्यू क्या है, 9 प्लस R. तो अब R, ये CM की वैल्यू कितनी होगी, अब गौर से देखिए, इट्स ऑल्सो R. ये CD क्या है, R. पूरा MD कितना है, MD यहाँ लिखा हुआ है, पूरा MD कितना है, 18. और ये CD कितना है, R. तो ये CM कितना हो जाएगा, 18 माइनस R. अगेन आई रिपीट, अब मैं यहाँ फिगर में ब्लैक लाइनिंग कर रहा हूँ, हमें सिर्फ इतना ही देखना है, ये वाला पार्ट. आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देना चाहिए. अब इसमें क्या हुआ, OM is what, radius of smaller circle, semicircle, it's 9. It's also radius, so it's a 9. Both are equal. It's a R, so it's also R. Okay, so whole length is 9 plus R.
MD is 18. Why MD is 18? It's a radius. So here is R, so CM is what? 18 minus R. Now in a triangle CMO आपको PGT लेना है, तो it becomes like that. CO square equals to CM square plus OM square. Now CO is what? It's a 9 plus R. So 9 plus R whole square equals to CM is what? It's a 18 minus R whole square plus OM is what? It's a 9 whole square. अब अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस. अब रेडियस मिल जाएगा तो ये आप सब कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, सबसे पहले क्या लिया? पूरा सेमी सर्कल बड़ा वाला, जिसकी रेडियस, जिसकी डायमीटर क्या है? AB. फिर ये वाला, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया. अब इसकी रेडियस ऐसे मिल जाएगी आपको, यहाँ से R. सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, तो आपको उसका एरिया भी मिल जाएगा. इट्स नॉट अ सेमी सर्कल, इट्स अ सर्कल. तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स.